ایک بڑا معروف پاکستان کا ٹرینر ہے, انہوں نے سارے بزنس مین کو دعوت دی, آپ بھی جانتے ہو, پرانے دوستوں میں سے ہمارے, ٹھیک ہے جی. انہوں نے دعوت دی, میں بچہ ہوتا تھا سر, میری عمر کو 21-22 سال تھی, میں بھی انوائٹڈ تھا. بل دینے کا ٹائم آیا نا, وہ ٹرینر اٹھ کے نکل گیا, ساری وہ بزنس کمیونٹی بیٹھی ہوئی, میں اس ٹرینر کا بریف کیس والا تھا. میں نے چپ کر کے بل پکڑا, میری اس دن کی کل کمائی جو تھی میں نے اس میں ڈالی, بل دیا اور میں نکل گیا. میں نے کہا جی کوئی مسئلہ. خالد یعقوب صاحب نے میرا نمبر کہیں سے ڈھونڈا, مجھے رابطہ کیا, کہتے یار تو ترقی بڑی کرنی. میں کہا جی کیسے؟ کہتے آپ نے ترقی والی. تب میں پھر ٹیچر موٹر سائیکل پہ تھا, زندگی میں حالات اچھے نہیں تھے, مسئلے ہی مسئلے تھے, کچھ نہیں تھا. میں نے کہا سر کیوں؟ کہتے یار یہ تیرا برڈن نہیں تھا, یہ برڈن تو اس کا تھا. میں کہا سر اب میں اس کی یا پھر سب کی, وہ اس وقت میں آپ پہ ڈالتا, سب کو کہتا جی کنٹریبیوٹ کرے, کوئی مسئلہ نہیں, چپ کر. اس کو پتہ لگ گیا ایک بندے کو. اور میں نے سوچا یار اس ٹائم کا وہ 6100 روپیز کا بل ہوگا, لیکن اللہ نے مجھے اتنا اچھا محبت کرنے والا استاد دوست اس دن عطا فرما دیا. وہ زیادہ بڑی بات ہے, زیادہ بڑی بات وہ ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں. انہوں نے ایک ایسا بندہ ہے, میں ریلی بتاؤں, میرا ان کے ساتھ ایسی دوستی ہے کہ میں اگر وہ ملک صاحب یہاں کروڑ روپے لگا دیں وہ لگا دیں گے, اتنا اعتماد ہے ان کو میرے پہ. وہ تب ہے جب اس دن اعتماد بنا, لیکن الٹ ہوتا ہے ہمارے ہاں, ہم چھوٹے سے واقعے پہ اپنا اعتماد خراب کر بیٹھتے ہیں, اور وہاں سے کیا ہوتا ہے. اب وہ اسی فیلڈ میں ہمارے وہ جو تھے بریف کیس جن کا مڑا, وہ عبرت ہے, عبرت ریلی نو نیم پیپل سے نام ریفرنس دو, لوگ کہتے ہیں یار نام نہ لو. ریزن کیا ہے؟ عادتیں گراتی ہیں, عادتیں آپ کو اٹھا لیتی ہیں. جتنا زیادہ آپ دوسروں پہ پھینکتے ہیں اس کا مطلب ہے جی آپ رسپانسبلٹی قبول نہیں کر. رسپانسبلٹی کیا ہے؟ آپ کا کاروبار آپ کا کاروبار ہے, آپ کی ناکامی آپ کی ناکامی, آپ کی کامیابی آپ کی کامیابی ہے, آپ کی غلطی آپ کی غلطی ہے, آپ کا درست فیصلہ اللہ کے کرم سے آپ کا فیصلہ اللہ نے آپ سے کروایا, ٹھیک ہے جی. جو خود کو رسپانسبل نہیں ٹھہراتا وہ کبھی بھی لیڈر نہیں بن سکتا, اور بالخصوص بزنس لیڈر تو بالکل نہیں بن سکتا. کاروباری بندے کے لیے یاد رکھیے گا, کاروبار 9 to 5 ہو ہی نہیں سکتا. یہ رننگ ہو, سسٹین کرنا ہو 9 to 5 ہو سکتا ہے, یہ کھڑا کرنا ہو, کیونکہ سٹارٹ اپس والے لوگ بیٹھے, میں آپ کو پہلے کہوں گا یہ عشق جنون جاگنے سے ہوگا, یہ راتیں لگانے سے ہوگا. یہ ہر کام آپ کو, ہم نہ پہلے کہتے ہیں بڑی سی ٹیم بنا کے میں شروع کر دوں, نہ, پہلے سب کچھ خود بن جاؤ. آپ کے بڑے کام آپ کو خود ہی شروع میں کرنے پڑیں گے. بڑے آغاز خود اپنے آپ سے ہوتے, خبر ہی نہیں ہوتی کال لینے والا کون ہے, ڈیلیور کرنے والا کون ہے, پرچیز کرنے والا کون ہے, پیکنگ کرنے والا کون ہے. اگر ہم شروع میں ہی سارا کچھ کہنے جب بندے رکھ لیں گے تو ہوتا کیا ہے, ہم بھی فیڈ اپ ہو جاتے ہیں, خرچے بھی نہیں نکلتے. رسپانسبل خود بنے, پہلے آپ کی ذمہ داری ہے, کامیاب ہوں گے تو آپ ہوں گے. جتنی زیادہ رسپانسبلٹی ہے, آپ کی ابیلٹی کا رسپانس, میننگ آف رسپانسبلٹیز اٹس دی رسپانس آف یور ابیلٹی. آپ میں جو ابیلٹی ہے اس کا رسپانس کتنا. مثلا میں کام چور کس کو مانتا ہوں؟ جو کر سکتا اور نہ کر رہا ہو کام چور ہے, اس کا مطلب رسپانسبل نہیں ہے. جو کر سکتا ہے, ابیلٹی ہے اور کرتا نہیں ہے, کام چور ہے. اور جو کر سکتا ہے اور کر کے دکھاتا ہے, رسپانسبل ہے, کیونکہ ابیلٹی بھی ہے اور رسپانس بھی ہے اس کا. میں نے زیادہ تر لوگوں میں دیکھا وہ کیا جی رسپانسبلٹی نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ وجہ یہ ہے وہ جاب مائنڈ سیٹ سے بنے ہوئے. جاب مائنڈ سیٹ میں آپ رسپانسبل اپنی ڈالتے ہیں کسی, وہ جی کمپنی خراب سی, حالات خراب سن, چیزاں خراب. رسپانسبل بندہ کیا کہتا ہے جی وہ ٹھیک ہے, لیکن میں نے اپنے آپ کو کتنا چیز چینج کیا, میں نے اپنے آپ پہ کتنا کام کیا, میں نے اپنی پالیسیز کو کتنا ریڈیفائن کیا, میں نے اپنی غلطیوں سے کتنا سیکھا. یاد رکھیے گا آپ کی کامیابیاں آپ کی ناکامیاں آپ کے گرد گھوم رہی ہوتی. ورک آن یور سیلف, امپروو یور سیلف, کیپیسٹی بلڈنگ کرو اپنی, کیونکہ سب کچھ آپ میں نہیں ہوتا. قابل بندہ ہائر کرنا سیکھے. کئی لوگ آتے ہیں کہتے ہیں سر جی میں اس گروپ میں کام کیا, میں نے چھوڑ دیا. کیوں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں جی وہ اچھا بندہ ٹکا نہیں سکتے. دنیا میں سب سے ناکام انٹرپرینور وہ ہوتا ہے جو قابل بندے کو ٹکا نہ سکے. کہتے ہیں اونٹ رکھنے دروازے اونچے کر لینے چاہیے. قابل بندہ وہ ہے جو قابل کو رکھ لیتا ہے اور قابلیت کو سمجھتا ہے. لیکن بعض لوگوں کی سوچ کتنی چھوٹی ہوتی ہے, وہ ایک ہی فٹے سے سب کو ماپ رہے ہوتے ہیں نا. مجھے یاد ہے کہ میرے بڑے اچھے پرانے دوست ہیں, ہم دونوں, بڑا پرانا واقعہ ہے, 2011 کا غالباً واقعہ. ہم ایک یوگا کے ایکسپرٹ کو ملنے گئے. میرے لیے بڑی لرننگ تھی اس دن. پاکستان کا بہت بڑا یوگا کوچ تھا,
बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी थी उसकी, बड़े बड़े लोग उससे योगा सीखने आते थे। लारस बाग में शायद अभी भी अगर वो जिंदा है तो योगा करवाता है, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट उसके स्टूडेंट थे। जब बाहर निकले तो मेरे उस दोस्त ने मुझसे पूछा, शाह साहब कैसा लगा बंदा? मैं कहा सर फजूल बंदा है। मैं कहा क्यों? वो कहते क्यों? मैं कहा जी इसको तो बोलना भी सही तरह नहीं आता। उसने कहा गलती कर दी तूने। मैं कहा कैसे? उसने कहा तू इसको कम्युनिकेशन से मैयर करता रहा, ये योगा का गुरु है, तू जरा ऐसे करके दिखा ना, तेरे नहीं ना हाथ लग रहे। कहते ओनू वेखो इंज लंघ जाएगा पिछों, ਉਹਦੇ ਚ फ्लैक्सिबिलिटी है नहीं है, तू फुट्टा गलत लाया, एनू जाके योगा भी चेक कर। बात समझ है कि नहीं है? होता नहीं कि बड़े लोग कह रहे होते हैं जी जनाब इसमें ये चीज पूरी नहीं है, उस चीज में है ही नहीं भाई कैसे करे? एक चीज उसके लिए बनी नहीं है, जिस चीज का चीता है उस चीज में वो। एक बंदा फर्ज करे क्रिकेट खेल रहा हो, ठीक है जी, और वो खेल के बाहर आए और एक देखने वाला उसे कि तुसी एक भी गोल नहीं कीता, वो कहेगा जी मैं क्रिकेट खेल रहा था, फुटबॉल नहीं खेल रहा था ये होगा ना, मेरा ख्याल है। समझ क्यों गया? याद रखें, बंदे को उसकी फील्ड में मैयर करना, उसकी कैपेसिटी चेक करना, उसकी काबिलियत को मानना सीखें। जब आप मानेंगे तो आपको पता लगेगा सारे काम आप नहीं कर सकते, बल्कि आप अपने से काबिल कई तरह के लोग अपने साथ जोड़ेंगे। ठीक है जी, यहां से शुरू होता है टीम बिल्डिंग का काम, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। टीम वो बना सकते हैं जिसको समझ आ जाती है मैं अकेला कामयाब नहीं हो सकता, और ये सच है। क्या मैंने बोला जी? कोई दुनिया का बंदा अकेला कामयाब नहीं हो सकता। ये वहम निकाल लीजिएगा, ये इस दिमाग से निकाल दें कि बगैर टीम बनाए, बगैर लोगों के, बगैर अफरादी कुव्वत के, बगैर एक ग्रुप बनाए आप कामयाब हो सकते। कामयाब होने के लिए ज़रूरी है कि क्या हो जी, आप में टीम बिल्डिंग, टीम बनानी आती, टीम प्लेयर बनना आता हो। तो मैंने देखा जी जितने ग्रुप ग्रो नहीं करते उनको हायरिंग नहीं करनी आती। बंदे पंजाबी कहते पा करना, बंदे का पा करना नहीं आता। उन्हें पता नहीं है कि बंदे की वर्थ को कैसे पहचाना। और अगला काम मैंने फॉल्ट क्या देखा, नाकाम लोगों में टीम बिल्डिंग नहीं आती। टीम बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप में कुछ खूबी हों, वो लिख लीजिएगा जी। टीम बंदा वो बना सकता है जिसके गोल्स क्लियर है, अपने टारगेट्स क्लियर है, एम्स क्लियर है, मिशन क्लियर है, कंफ्यूज नहीं है। टीम वो बना सकता है जो कोच अच्छा है, जो तैयार कर लेता है, साथ जोड़ लेता है। टीम वो बना सकता है जो दरगुजर और माफ कर सकता है। टीम वो बना सकता है जो कहीं ना कहीं जान जाता है कि हर बंदे की एक वर्थ है, हर बंदे की एक उसकी क्या है जी सलाहियत है। टीम वो बनाता है जो पता लग जाता है कि जी मैं ग्रो नहीं करना बगैर बंदों के, मुझे बंदे चाहिए, लोग चाहिए। टीम वो बनाता है जो मुस्कुरा सकता है। टीम वो बना सकता है जो शाबाशी दे सकता है। टीम वो बना सकता है जो अप्रिशिएट कर सकता है। टीम वो बना सकता है जो इस्लाह भी कर सकता है। ये सारी चीजें कहीं मिला के क्या बनाती हैं? टीम बिल्डिंग करवाती हैं। पाकिस्तान में वैसे बताऊं ज्यादातर पार्टनरशिप्स में काम है। इसमें कसूर ये नहीं है कि बेईमानी बड़ी ज्यादा है, इसमें बहुत ज्यादा कसूर ये है कि लोगों को साथ चलना नहीं आता। लोग अपने रिश्तों में सही तरह साथ नहीं चल सकते, कारोबार में तो फिर नफा नुकसान है। फायदे के टाइम पे कुछ और होते हैं, नुकसान के टाइम पे वो दूसरे पे डाल देते हैं। नहीं होता है, बड़ा मुश्किल। शेयरिंग बड़ा, वंड के खाना पंजाब में कहते हैं, वंड के खाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। विन विन क्रिएट करना कि तुम भी जीतो मैं भी जीतूं, ये क्रिएट करना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। ठीक है, तो टीम डिपेंड करता है जी आप क्या कर रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कुछ चीजें आपकी पार्टनरशिप में हो, कुछ आपकी टीम हो, वो सैलरीज पे डिपेंड करता है ना, केस स्टडी क्या है, नोयत क्या है, चीजें क्या है। नेक्स्ट जी, मैंने सिमिलर देखा है, सबके सब जितने ग्रो करने वाले बिजनेस हैं वो 1 माइल मोर चलते हैं। उनमें एक फलसफा होता है, टू रन 1 माइल मोर, कुछ ज्यादा करना, वादे से ज्यादा करना, शेर का वादा करके 1.25 शेर देना। मेरे कॉर्पोरेट में जितने क्लाइंट्स हैं, जितनों के साथ हम बिजनेस करते हैं, हम बाद में उनका शुक्रिया अदा करते हैं, उनको गिफ्ट भेजते हैं और उनको कहते हैं जी कोई मसला आए तो हम हाजिर हैं। अच्छा, ये बंदा तब कर सकता है जब बंदे को इत्मीनान हो अपने काम पे। अच्छा, फर्ज करें कि अगर नहीं है, बंदा कहेगा जी फोन होना ना ब्लॉक कर दे, अगर तू कॉल करे चुकना ही कोई नहीं, ठीक है, राब्ता करे तो मुड़ के भी नहीं देखना। फिर बता रहा हूं, बड़ी दुनिया थैंकलेस है। उनकी नाकामी की वजह उनका थैंकलेस होना। थैंकलेस बंदा तरक्की नहीं कर सकता, ग्रो नहीं कर सकता। हंट कर सकता, कभी कुछ आ जाएंगी चीजें,
दो चार कामयाबी नहीं, चलते चले जाना, एक फार्मूला बनाना और उस फार्मूले को लेकर चलते चले जाना, ये कामयाबी है। तुक्का लग जाना, जैकपॉट कभी हो जाना, ये कोई कामयाबी नहीं। एक इंग्लैंड में रिसर्च थी, पूरा एक जावेद चौधरी ने कॉलम बड़ा पुराना लिखा है, इससे 10 साल पहले, जिनकी लॉटरीज निकलती है ना 2 साल बाद फिर सिफर पे होते हैं 80%, क्योंकि पैसा आ जाता है, पैसा संभालने की सलाहियत नहीं होती उनमें, वो ऐसे ऐसे बड़े ब्लंडर्स करते हैं। एक बंदे को फर्ज करें मेहरान पे गाड़ी नहीं सीखी और डायरेक्ट मर्सिडीज मिल गई है, वो क्या करेगा? वो ठोकेगा, मारेगा, डैमेज करेगा, मुमकिन है बड़ा हादसा हो जाए उसके साथ। विजन क्या है कि जो गाड़ी आई है वो संभालने की सलाहियत ही नहीं रखता। और ये इस मौके पे मैं आपसे कहूंगा दुआ मांगा करें, या बारी ताला जो कामयाबी है मुझे संभालने की तौफीक भी अता फरमा। हम सारे कहीं ना कहीं, इंसान है, फेमस होना चाहता है, कामयाब होना चाहता है, बड़ा बनना चाहता है, दुआ करें पहले संभाल लें आप, ठीक है। तो पॉइंट क्या था जी हमारा? वन वालमार्ट। अब पुरानी कहानी आप सब ने मेरी वो सुनी होगी, वीडियो बड़ी वायरल हुई, ग्लास के साथ ग्लासी फ्री, दर्जन 12 की बजाय दर्जन क्या हो गए 13। आप आज जाए लाहौर के जितने बड़े ब्रांड चल रहे हैं, आप शर्ट एंड टाई पे चले जाए, शर्ट एंड टाई वाले आपको कहेंगे जी आपने लिया है, अल्ट्रेशन करानी हो फ्री कर देंगे आप। चूंगा क्या है जी, अल्ट्रेशन करानी है फ्री करवा लें हमसे, कोई मसला नहीं सर, साइज करवाना, लेंथ करवानी कोई चीज़ है सर, हम फ्री कर देंगे सर, ठीक है जी। यहाँ तक कि अगर आप अच्छे कस्टमर हैं, वो आपको कहेंगे जी आप टेंशन ना लें, ये शाम को हमारा बच्चा आप घर तक छोड़ाएगा, आपने टेंशन नहीं लेनी। फैसिलिटेट करना, कुछ एक्स्ट्रा करना, कुछ ज़्यादा करना, वादे से ज़्यादा करना। अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि आप अवेयरनेस दें, साथ जो आप काम कर रहे हैं उसकी अवेयरनेस भी दी, इससे चीज़ें मल्टीप्लाई होंगी। देखें कई मेडिसिन की कंपनीज हैं, फार्मा की, वो शुगर की कंपेन चलाती हैं, जी यार ये साइंस हो तो शुगर है आपको, ये नेकी है बहुत बड़ी, बिजनेस तो अपनी जगह हो रहा है लेकिन आप अवेयरनेस भी दे रहे हैं, ठीक है जी। नमूनिया की बड़ी कंपेन अखबार में चल रही होती है, ठीक है जी। मेडिसिन है और भी कंपनियों की होगी, लेकिन उसके साथ क्या है जी, कहीं ना कहीं अवेयरनेस भी है। तो आप कहीं ना कहीं वादे से क्या करें, ज्यादा करें, जो वादा आपने किया उससे ज्यादा करें। 1 माइल मोर, एक कदम ज्यादा करना, चुंगा शामिल करना, दर्जन 13 करना। और मैं फिर कहूंगा अपने काम का दर्जन 13 डिफाइन करें। हर काम का एक दर्जन 13 होता है। आप कपड़े का कारोबार करते हो और एक माल्टा साथ देने लगता हूं मेहरबान होते हैं, ठीक है। शाह साहब ने कहा जी दर्जन, मेरे काम में मेरा दर्जन 13 होगा। हम हमारे कई क्लाइंट्स हैं, हम उनके साथ दर्जन 13 का कहते हैं, हम कहते हैं जी आपको कॉम्प्लीमेंट्री सेशन दे देंगे। और मैं बड़ी बड़ी दूर गया हूँ वादा सिर्फ पूरा करने के लिए, बड़े बड़ा ट्रैवल करके, क्योंकि मैंने जुबान से निकाला था, मैंने वादा पूरा किया। उन्होंने कहा जी मैं पहुंच जाऊंगा। आप अंदाजा करें कारोबार में अगला पॉइंट इंतहाई अहम है, वो है आपकी क्रेडिबिलिटी, आपकी हवा, आपका तासुर। लोग कहीं पैसे कमा लेते हैं, इमेज खराब कर बैठते हैं। कभी अपने इमेज पे और अपने रिस्पेक्ट पे कंप्रोमाइज ना करें, नेवर एवर नेवर, गलती भी नहीं करनी। हमेशा याद रखें कि जो आपका इमेज है वो सब चीजों से इंपॉर्टेंट। वादा करें तो पूरा करें, हकदार को हक दें उसका, नाइंसाफी ना करें। गलती हो गई है, कई दफा ऐसे हुआ है, रियली बताऊं, एक सेशन है, मेरी तसल्ली नहीं हुई, मैं कैसे चेक करता हूं, अंदर से आवाज आनी चाहिए, नफ्स की नहीं, दिल से आवाज है, यार मैंने पसीना अपना निकाला है, गाल के अपने आप को पैसे कमाए, और मेरे अंदर से आवाज आई नहीं। मैंने उनसे वादा कर लिया, अब कभी चाहे जिंदगी, उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा सर ओके। मैंने उनसे जाते मैं कहा मेरा दिल कर रहा है मैं आपसे वादा करूं, मैं कभी आऊं तो मैं हाजिर हूं आपके लिए, नथिंग, नो नीड टू पे मी। वाई? बिकॉज भाई मुझे तो पता है ना, मेरे अल्लाह को तो पता है ना। जब आपको पता है, आपके अल्लाह को पता है, तो कभी गिल्ट ना लीजिएगा, डंडी नहीं मारना, इमेज खराब नहीं करना। बड़ी बार ऐसे हुआ मैंने नुकसान उठा लिया, बड़ी जिंदगी में बड़े वाकयात है। एक वालिद मेरे पास आ गए, पुरानी वो स्कूल चला, उन्होंने कहा साइकिल तुसी चुकाई, मैं कहा जी आप लड़े ना, पैसे बता 15,700, मैं कहा जी उन्हें पढ़ो, पुराना जमाना है, मैं वो इम्पोर्टेड साइकिल थी, मैं कहा जी आप ले लें, लेकिन ये नहीं हो सकता। और बड़े पिछले साल हमारा एक टूर था, चका सा नुकसान, मैं कहा यार मैं 35-36 लाख रुपए दे तो कोई मसला, इमेज नहीं खराब कर सकता, ये दोबारा आ जाएंगे, पैसे दोबारा आ जाते हैं। याद रखिएगा, रिस्पेक्ट दोबारा नहीं बनती, इज्जत नहीं बनती। अपनी क्रेडिबिलिटी पे, अपने इमेज पे कभी आपने कंप्रोमाइज नहीं करना। सर जी आइडिया दे रहा हूं, छोटा सा काम पकड़ें, लेकिन आप जैसा फिर कमाल का वो कोई ना कर सके। कभी ऐसा हुआ आप कभी सिनेमा में आप लेट पहुंचे हो, मूवी चल पड़ी हो, अगर आप सिनेमा में जाएं और 15 मिनट पहले मूवी चली हो ना,
तो आपको बताऊं अगले 15 मिनट समझ नहीं आती, और फिर क्या होता है उसके बाद वो समझ आना शुरू हो जाती है, आप कनेक्ट कर जाते हैं। जब आप बिजनेस की तरफ जाएंगे ना, दुनिया के किसी भी कारोबार में नई नई आपने एंट्री डाली है, कुछ अरसा समझ नहीं आएगी, और कुछ अरसे के बाद उस शोबे में नए आने वाले आपसे आके पूछा करेंगे। दिस इज कॉल्ड सैनमा थ्योरी। सैनमा थ्योरी क्या है? आप लेट आए, आप आने के बाद आपने कहा जी क्या चल रहा है, आपको समझ नहीं आएगी इस मार्केट में बिग टाइकॉन्स कौन है, आता कहां से जाता कहां पर है, कंज्यूमर कहां पर है, टारगेट्स क्या हैं, कैसे पूरा करना है, क्या होना है, आपको कुछ नहीं पता, अंधे होंगे बिल्कुल, आप बिल्कुल अंधे। लेकिन कुछ अरसे के बाद अगर आप क्रेजी हैं, पहले मैंने कहा कारोबार सिर्फ दिमाग से नहीं होता, कारोबार इश्क से होता है, और आप इश्क करने वाले हैं, डूब के करने वाले हैं, यकीन कीजिए आप अपनी मार्केट के बारे में राय दे सकेंगे, आप पॉलिसीज बना सकेंगे। लोग आपसे पूछेंगे यार ये तुम बताओ कैसे करते हो, ये तब होगा अगर आपने वाकई टाइम दिया। और बड़ी दुनिया ऐसी भी है सर, जो 15 मिनट लेट आती, कहती फिल्म नहीं समझ आ रही, चलो अगली देखते हैं। वो अगले रूम में जाते हैं, वहां पर भी फिल्म चल रही होती है, कहते अभी समझ नहीं आती, चलो अगली देखते हैं। वो 3 फिल्में छोड़ के कहते हैं नेचूस खाते हैं, घर आ जाते हैं। उन्होंने देखनी नहीं होती है सर, जिसने देखनी होती है उसे पता है थोड़ी देर के बाद फिल्म ने समझ आ जाना है मुझे। आप फिल्म को मिड से भी देखें ना, मैं कहता हूं आप 30% रह गई हो तब भी देखें, फिल्म समझ आ जाती है, बशर्ते आप टिक जाए। तो कोई एक चीज पकड़िए, उसको टाइम दीजिए, वो अपनी गिरें खुद खोलेगी, चीजें खुद बताती हैं, फीडबैक, गलतियां बताती हैं, मिस्टेक्स बताती हैं, क्लाइंट बताता है, सीनियर बताता है, रोल मॉडल्स बताते हैं। और कभी शर्म महसूस ना करें किसी के सामने गलती मानने की, बिलखसूस जिससे सीख रहे हैं उसके सामने गलती मानने, एडमिट करेंगे जी मेरे से मिस्टेक होगी, मैं इंप्रूव करूंगा। बड़े लोग, हमारे एक और भी फॉल्ट है इस माशरे में, कवर कर जाते हैं। मैंने जिंदगी बड़े प्रोजेक्ट किए हैं, 3 का टोला बनेगा, कहना बस हार ना पता लग रहा then they think that यार ग्रो करेंगे। एटीट्यूड क्या हो गया क्विटर का, विनर तो आप बन नहीं सकते क्योंकि आपने क्विट किया ना, फेस नहीं किया, रियलिटी को फेस नहीं किया। तो रियलिटी को फेस करने वाला इंप्रूव कर जाता है, गलती को ठीक कर जाता है। मिट्टी डाल के कवर करने वाला, वो कवर करते करते वो टॉप कैटेगरी की चीज बना ही नहीं सकता, टॉप लेवल की सर्विस दे ही नहीं सकता, क्योंकि उसने क्या किया होता है, कहीं ना कहीं कवर किया।